So you know that the carbene and nitrines are somewhat similar. They are called as analogous. Okay, analogous means they have show the some similarity between the two periodicity of inorganic elements. Example is first group element, second. Okay, so lithium, beryllium. Okay, and some few elements in the pair from first group element one element and from second group element other element, they show the analogous behavior. That analogous behaviors are nothing but they show the some certain similarity. So that property is called as an analogous one. So similarly, the nitrine, which also have the similarity toward the carbene. Now we'll discuss how it show the similar to with respect to that carbene now. Okay. Okay, so what we'll discuss the structure, hybridization, geometry of that nitrine, how to generate that nitrine, and what are the chemical reactions from in which nitrines are used. Okay, so what is nitrine now? Nitrogen with the lone pairs, okay, or singly bonded nitrogen with the lone pair, that species is called as a nitrine now. Okay, similar to that of your carbene. You know that carbene is a divalent species, and look at this nitrogen now. Nitrogen with this type of what the species now here, only two electrons pair are there now. Now if you see the difference between this nitrine and carbene, both have, this is divalent, this is divalent, and this is what monovalent. This is the first difference between the nitrine and carbene. So it have the only 6 electron, it also have the only 6 electron. But 6 electron कैसे रहेंगे? The nitrogen having only one covalent bond and what the two valence lone pairs. But in carbene, two are the covalent bond, where one pair is the valence lone pair. Okay, this is the simple structure of what nitrine and what the carbene. So in nitrine, the nitrogen is the responsible element for the deficiency, while in carbene the carbon is there now. Okay, so a nitrogen atom which possesses only 6 electron in terms of a two lone pair and one bond pair. And the state, that is spin state of that nitrogen, is also be classified on the basis of that different state. One is called a singlet nitrine and second is called as a triplet nitrine. We'll discuss the two different structures of our nitrine now. So look at this one, this is Rn. ओके, ये हो गया एक पेयर उसका, जो दूसरा जो पेयर रहेगा वो इस तरह से रहेगा, एंड दैट स्ट्रक्चरली रिप्रेजेंटेड एज दिस इज R, this is my nitrogen, and the remaining orbitals are like this. This is one orbital, another orbital, this one, and this one. Now look at this one, the electronic arrangement is here now. The one pair is already, one pair is there, okay, and these two electrons are in this fashion. So if these two electrons are okay, these electrons, okay, this one and this one, if they are in parallel position or in the same direction, that carbene, that nitrogen will be called as a triplet carbene. Opposite direction, they are called as a singlet carbene. So we have also two singlet nitrogen. So always, you know that if you see the Jablonski diagram from photochemistry, so triplet states are always lower energy than what the singlet state now. Okay, and with respect to their energy, we can classify their stability now. So generally, triplet state is a more stable than compared to what the singlet, because if you see the Jablonski diagram, you will observe that this is what the singlet state now. Okay, and singlet states are classified in many excited singlet states now. Example, this is S1, this is S2, this is S3, this is S4, and each singlet state is further splitted or further explained in the triplet form, and this is called as a T1, this is T2, this is T3, this is T4. Okay, S0 का T0 नहीं होता है कभी. Okay, so चाहे वो ट्रिपलेट स्टेट हो चाहे वो सिंगलेट स्टेट हो, उन दोनों के लिए ग्राउंड स्टेट क्या रहेगा तुम्हारा? S0 is the ground state. Okay, we will learn in the photochemistry. Look at this one, this is the energy now. ये एनर्जी ऐसे ऐसे बढ़ते जा रही है फ्रॉम S1 to S2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा. मतलब S0 से दो टाइप्स के आपके पास क्या बन सकते हैं. लुक एट दिस वन, हाउ दिस सिंगलेट एंड ट्रिपलेट आर जनरेटेड. सपोज आई हैव द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाउ, मेरे पास अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, सिंगलेट कैसे बनेगा है. सिंगलेट मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइट होने के बाद
अगर मुझे दो ऐसे स्टेट मिलते हैं, लुक एट दिस वन, और एक बार मुझे ये कैसे भाई कोई, ओके लुक एट दिस, जो है वो प्रमोट हो गया, यानी कि इट इफ यू प्रोवाइड द लाइट टू दैट सिस्टम, मैंने इसको क्या किया, लाइट प्रोवाइड किया, तो क्या हो जाएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट हो जाएगा, कौन से लेवल में, जो रहेगी आपकी हायर एनर्जी लेवल, वहां पे चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोज अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, ये वाले बाजू वाले, तो यहाँ पे स्पिन क्या हो गया, अपोजिट हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, स्पिन रिटेन हो गया। तो एक बार स्पिन रिटेन भी हो सकता है, एक बार स्पिन अपोजिट हो सकता है। अब जब दो इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेम रहेगी, तो इनका स्पिन एस एस वैल्यू कितना आएगा, प्लस हाफ एंड प्लस हाफ, तो एस इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ पे एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, 0 हो गया। तो जब आप स्पिन 0। निकालोगे इसकी 2s+1, तो कितना हो जाएगा, ये 2 × 1+1, यानी कि ये हो गया ट्रिपलेट, यानी कि इसकी स्पिन स्टेट कितनी आ गई, 3 आ गए, तो ये क्या हो गया, ट्रिपलेट। और जब इसकी स्पिन स्टेट आप निकालोगे, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अपवर्ड डायरेक्शन में है, जो पहले से ही था ये वाला, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रमोट होकर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया, यानी कि स्पिन उसका क्या हो गया, रिटेन हो गया। तो फिर इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे हम पुट अप कर सकते हैं, सो 2 × 0+1 कितना हो जाएगा, ये 1 हो 1। जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज ए सिंगलेट। So basically the triplet and singlet states are appear due to the promotion of electron, ठीक है। सो क्या वो इलेक्ट्रॉन वापस से उसी जगह पे आता है, या फिर उसकी पोजीशन या उसकी जो स्पिन है वो बदल जाती है, सो उसके हिसाब से हम उसको क्लासीफाई करते हैं। उसी तरह से जो नाइट्रीन जो है हमारा, इसके जो दो इलेक्ट्रॉन पेयर निकाले यहाँ पे रेड कलर में, सो ऑन दैट बेसिस वी आर गेटिंग क्लासिफाइड। कैसे था, ये दो इलेक्ट्रॉन थे प्रेजेंट, जिसकी वजह से हमने उसको सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बन कहा। T1 का गैप आप देख सकते हैं, S1 थोड़ा ऊपर है तो T1 थोड़ा नीचे है, और जिसकी एनर्जी कम रहेगी वो उतना ज्यादा स्टेबल रहेगा। ओके ओके, सो व्हाट इंट्रोडक्टिव पार्ट में हम क्या बता सकते हैं कि जो नाइट्रीन है आपका, वो हमेशा लीनियर फॉर्म में ही रहेगा, क्योंकि उसके पास मोनो वैलेंसी है, एक ही वैलेंसी है उसके पास, ठीक है। और स्ट्रक्चरली जो है उसको हम ऐसे बता सकते हैं कि दे हैव व्हाट, क्योंकि इसके पास क्या है, एक ही लोन पेयर है ना आपके पास कुछ और लगा है क्या, एग्जाम्पल आप कंसिडर कर सकते हैं कि वी हैव सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर, और ऐसा लगा हुआ। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन कंसिडर करते हैं सपोज एग्जांपल, तो ऐसे कोई भी मॉलिक्यूल का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या रहेगा, इट इज एन sp। तो सिंपलेस्ट केस में अगर हम देखेंगे अपन, तो जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्ड रहेंगे एक दूसरे के साथ में, सो ऐसे वाले कंपाउंड्स को, ऐसे वाले स्पीसीज को, या ऐसे वाले नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या रहेगा, हमेशा sp हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, SP। जहाँ पे 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है जो नॉन बॉन्डिंग में है, और एक क्या प्रेजेंट है, एक बॉन्डिंग, ठीक है। ओके अंडरस्टूड। तो यहाँ पे आप कोई भी नाइट्रीन कंसिडर कर सकते हो। सो अलग अलग एग्जाम्पल है, और ऐसे वाले नाइट्रोजन को हम इमिडाजोन बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड IMID जन, बट द इमिडोजन नाउ, ओके। सो मेथड्स ऑफ व्हाट डे जनरेशन, हाउ टू जनरेट, अगेन वही है कि आपको अल्फा एलिमिनेशन करना है उसका बाय यूजिंग स्ट्रॉन्गर बेस, अमाइन से हम जनरली बना सकते हैं ये सब चीजें। ओके, सो राइट डाउन द फर्स्ट रिएक्शन फ्रॉम अमाइंस नाउ, और फ्रॉम एन हेलो प्राइमरी अमीन। सो सपोज एग्जांपल मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, सो दिस इज H एंड दिस इज X नाउ, ठीक है। सो बेसिकली लुक एट दिस कंपाउंड नाउ, और जहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एक ही कार्बन पे दिए, मैं इसको एलिमिनेशन कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्गर बेस नाउ। अब बेस मुझे ऐसा यूज करना पड़ेगा कि जो कि बहुत पावरफुल है, जिसमें एबिलिटी हो कि जो नाइट्रोजन के पास से क्या निकाले, प्रोटॉन निकाले। ओके, सो दैट बेस विल अब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन, एग्जांपल आप एलडीए ले सकते हैं, या एग्जांपल आप ऑर्गेनोलिथियम यूज कर सकते हैं, ये सब चीजें यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हैं। बाय अब्स्ट्रैक्शन ऑफ द प्रोटॉन क्या हो जाएगा, ओके, सो बाय द अब्स्ट्रैक्शन ऑफ द प्रोटॉन what happened now, so that hydrogen is going to be abstracted by that particular base now, फिर जैसे प्रोटॉन abstract हो जाएगा, so what happened, तो नाइट्रोजन विल जनरेट द नेगेटिव चार्ज, सिमिलर टू दैट ऑफ कल हमने 1-1 एलिमिनेशन देखा था वहां पे। और यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास एक लोन पेयर है, क्योंकि नाइट्रोजन की न्यूट्रल वैलेंसी क्या होती है, 3, तो यहाँ पे एक लोन पेयर है, तो मैं इसको रेड से ही मेंशन करता हूँ, जो पहला लोन पेयर आ गया। अब जैसे ही वो हाइड्रोजन वहां से चला गया, वो H+ के फॉर्म में जा रहा है, यानी कि जो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे रहेंगे, नाइट्रोजन के पास ही रहेंगे, यानी कि दैट विल जनरेट द नेगेटिव चार्ज ऑन द नाइट्रोजन। ओके, और एक आपका हाइड्रोजन जैसे कि वैसा, सो दैट हाइड्रोजन विल बी सेम, ठीक है। अब क्या होता है इन द नेक्स्ट स्टेप, द सेल्फ एलिमिनेशन ऑफ व्हाट हाइड्रोजन, दैट विल बी लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ योर
डिजायर प्रोडक्ट। तो अगर मैं इसको सेल्फ एलिमिनेशन करता हूँ, यानी कि बाय टेकिंग द इलेक्ट्रॉन, वो अभी एक्स क्या कर रहा है, जो बॉन्ड देखो हेटेरोलाइसिस हो रहा है, वहां पे हेटेरोलाइसिस हो रहा है, तो कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं आपके, एक्स की तरफ। सो रिजल्ट्स इन दैट फॉर्मेशन ऑफ आर एन। ठीक है, एक लोन पेयर पहले से था मेरे पास रेड कलर का, और एक नेगेटिव चार्ज जो है वो ग्रीन कलर का। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हो गया, इट इज नथिंग बट द टू इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो मैं इसको वन नेगेटिव चार्ज, और ग्रीन को मैं ऐसे दिखा सकता हूँ। सो दिस स्पीसीज इज कॉल्ड एज ए नाइट्रिन। अंडरस्टूड। तो नाइट्रिन कैसे जनरेट हो रहा है आपका, और ये क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, पहले केस में आपका हाइड्रोजन भी चला गया, क्या क्या हो गया यहाँ पे, दिस हाइड्रोजन एंड दिस एक्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम सेम सेम एटम। दैट्स व्हाई इसको हम क्या बोल सकते हैं, which type of elimination is this? Yes, it is called अल्फा as a एलिमिनेशन। alpha elimination, or we can call it as a 1-1 elimination. तो इसको हम 1-1 क्यों बोलते हैं, because your hydrogen and living group is eliminated from same atom, इसलिए इसको अपन 1-1 या अल्फा एलिमिनेशन बोल सकते हैं। ओके, फिर ये जो नाइट्रिन है ना, ये दो टाइप का होता है। इफ द नाइट्रिन इज अटैच विद कार्बोनाइल ग्रुप, देन इट इज कॉल्ड एज ए असाइल नाइट्रिन। तो हमारे पास नाइट्रिन कितने टाइप्स के हैं, एक सिंपल नाइट्रिन होता है ये वाला, और एक होता है दैट इज कॉल्ड एज ए असाइल नाइट्रिन। सो व्हेन इट इज अटैच विद द when it is attached with the word this species, यहाँ पर भी ऐसे दो रहेंगे। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाइट्रिन्स आर देयर, सिंपल नाइट्रिन रहेगा दिस इज, जिसको अपन अल्काइल नाइट्रिन बोल सकते हैं, और एक को अपन क्या बोलेंगे, असाइल नाइट्रिन। दिस इज कॉल्ड अल्कील नाइट्रिन, और इसको हम क्या बोलेंगे, असाइल नाइट्रिन। राइट। सो ये हो गया हमारा पहला मेथड ऑफ जनरेशन, जहां से हम आसानी से उसको बना सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द अल्फा एलिमिनेशन। ओके, अभी नेक्स्ट कंपाउंड भी ऐसे है कि जो नाइट्रिन को बनाते हैं, दैट इज फ्रॉम अजाइड। सो फ्रॉम अजाइड हाउ वन कैन प्रिपेयर। अब अजाइड क्या होते हैं, what are the azides now, azide मतलब N3 group. So basically that azides are general representation is RN3. So RN3 वाले कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, azides बोलते हैं। ठीक है, और अजाइड को स्ट्रक्चरली कैसे लिखा जाता है, लुक एट दिस वन। सो दिस इज RN डबल बॉन्ड N एंड डबल बॉन्ड N, ये वाला जो है वो अजाइड है। ठीक है, अब अजाइड का जो है मैंने निकाला है पूरा स्ट्रक्चर। तो अभी मुझे बताइए चार्जेस कहाँ पे रहेंगे, वेयर द चार्जेस आर देयर नाउ, फर्स्ट हाइड्रोजन डाइवैलेंट है, इसी वजह से उसको नेगेटिव चार्ज। मतलब ओवरऑल जो है ये आपका कंपाउंड क्या रहेगा, न्यूट्रल ही रहेगा। ओवरऑल आपका कंपाउंड कैसा है, न्यूट्रल है। ओके, नाउ विल डिस्कस व्हाट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, क्योंकि जब तक आप उसमें से N2 नहीं निकालोगे तब तक आपको अजाइड क्या नहीं बनेगा, नाइट्रिन नहीं बनेगा। फिर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, द लोन पेयर फ्रॉम दैट और फ्रॉम दैट नाइट्रोजन जो है, इसके पास अभी कितने लोन पेयर होने चाहिए, ऐसा है ये कंप्लीट। सो जब मैं ये लोन पेयर को इधर शिफ्ट करता हूँ, तो दिस विल बी गोइंग टू बी शिफ्टेड ऑन दिस वन। सो अभी क्या हो रहा है यहाँ पे कि देयर इज अ कंप्लीट प्रमोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन चार्ज नाउ। ओके, सो अभी स्ट्रक्चर आपका बदल गया। चलिए अब क्या हो जाएगा, जो लास्ट वाला का नाइट्रोजन है वो हो गया ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट। ओके, और चार्जेस कहाँ पे आएंगे, वो लिखो अभी। सो दिस विल बी अ नेगेटिव चार्ज अलॉन्ग विद द लोन पेयर। ठीक है, नेगेटिव चार्ज भी आ गया, उसके ऊपर एक लोन पेयर भी आ गया, और आगे बीच वाले पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे एक ही लोन पेयर आपके पास बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट केस में क्या हो जाएगा, व्हाट हैपन इन द नेक्स्ट स्टेप। So you know that this N2 N2 is निकल one of जाएगा। the best living group, and for that purpose we are going to use the either light condition or the thermal condition. और N2 जो है वो कैसे एलिमिनेट होता है, it is a self elimination of the N2 by heterolysis now. Look at this one. और हेट्रोलिसिस की वजह से क्या हो जाएगा, आपका जो नाइट्रोजन गैस है वो इवॉल्व हो जाएगा वहां से, बिकॉज इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप, एंड दैट विल रिस्पॉन्सिबल फॉर द नाइट्रिन विल बी डेवलप नाउ। ये हो गया, N2 भी चला गया। अब जो चार्जेस है वो एक नेगेटिव चार्ज और एक लोन पेयर, इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज व्हाट, द नाइट्रिन। सो यहाँ से भी हम इसको बना सकते हैं। सो व्हाट दीज आर द सिंपल रिएक्शंस फ्रॉम व्हिच द नाइट्रिन्स आर गेटिंग नाइट्रिन्स आर ऑब्टेन। सो एक तो अजाइड से हमने बनाया उसको, और फ्रॉम जो है वो हेलो कंपाउंड से हमने बनाया उसको। ठीक है, यस सर। नाउ अब सिंथेसिस तो हो गया इसका। अब हमको क्या पढ़ना है कि व्हाट इज एक्चुअली पर्पस ऑफ दैट नाइट्रिन। नाउ हम नाइट्रिन को कहाँ पे यूज कर सकते हैं, व्हाट आर द मेन रिएक्शंस इन व्हिच व्हाट द नाइट्रिन्स आर यूज्ड नाउ। सो नाइट्रिन रिएक्शन, अब हमने जैसे कार्बिन के
रिएक्शंस पढ़े थे वैसे नाइट्रिन के भी रहेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, एनालॉगस है। तो नाइट्रिन क्या क्या दिखाता होगा? सो लुक एट दिस नाइट्रिन नाउ. So nitrine also be participate in the same reaction as like of your carbene. तो पहले क्या दिखाया गया है? It show the addition reaction, it show the insertion reaction, और क्या दिखाया गया है? And it show the what? Rearrangement reaction. तो ऐसे तीन अलग अलग इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है वो जो है कौन दिखाता है तुम्हारा? ये नाइट्रिन दिखाता है। सो व्हाट इज एडिशन? हमको जो है वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड मिलेगा। लुक एट द रिएक्शन, सपोज आई हैव दिस डबल बॉन्ड एंड आई एम गोइंग टू रिएक्ट विद द नाइट्रिन। क्या होता है? नाइट्रिन इज एन 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इलेक्ट्रॉन रिच कौन है फिर आपका? हु इज इलेक्ट्रॉन रिच नाउ? अल्कीन। double bond is electron Double. and that is going to be participate in this fashion. Okay, और ये जो है ये बना के क्या बन जाएगा आपका? सो इट डेवलप द 3 membered ring. क्या बन रही है यहाँ पे? 3 membered ring बन रही। नाउ लुक एट दिस वन, इफ अ सिंगल स्पीसीज डेवलप द 2 bonds, 2 sigma bonds, अगर कोई सिंगल स्पीसीज, चिलोट्रॉपिक रिएक्शन, इसको हम क्या? चिलोट्रॉपिक convert into the a 3 member heterocyclic compound. लास्ट इसमें कार्बिन में क्या बना था? साइक्लोप्रोप। Okay, sir. Yes. ओके, सो लुक एट दिस वन। हमको क्या करना है कि जो नाइट्रिन जो है वो एज ए रिएक्टिव स्पीसीज बोलकर हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि ऐड हो रहा है अनसैचुरेशन पे, और ये खुद डेफिशिएंट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन रिच पार्ट पे ऐड होगा, और जिसकी वजह से तुमको एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड मिल रहा है जो कि है 3 membered एंड दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एज ए अजीरेन। इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड अजीरेन। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ए, जैसे हमने उसको साइक्लोप्रोपेनेशन बोला था, वैसे इसको अपन क्या बोलेंगे? अजीरिडिनेशन। दैट इज देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ 3 membered हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज कॉल्ड इंसर्शन। अब इंसर्शन कहाँ पे होता है? इंसर्शन इन बिटवीन द एक्टिव पोजीशन है, NH है, ओके, या फिर आप यहाँ पे और क्या क्या ले सकते हैं यहाँ पे आप? SH. So there are various positions are there in which it can insert, okay, and then development of what your particular compounds now with one more nitrogen. So ये इंसर्शन में भी पार्टिसिपेट आपका करता है। वन मोर इंपॉर्टेंट है आपका रीअरेंजमेंट। क्या नाइट्रिन रीअरेंजमेंट में पार्टिसिपेट होता है? यस। सो असाइल नाइट्रिन जो है आपका, क्या कंपाउंड है? क्या नाम है इस कंपाउंड का? असाइल नाइट्रिन। दैट असाइल नाइट्रिन is going to be rearrange itself to isocyanate. कैसे होता है ये? लुक एट दिस R is going to be shift on nitrogen, lone pair is going to be shift at here now. So this is called a rearrangement. क्या हो जाएगा आपका? O, this O then attach with carbon, then double bond nitrogen, and this is R now. So that acyl nitrogen is going to be rearranged to, कहाँ पे हो गया वो? कहाँ पे चला गया? Hello. Yes, sir. Yes, sir. So what the nitrogen show the 3 possible reactions now. One is a addition reaction, insertion reaction, and lastly the rearrangement reaction. So in rearrangement reactions, what we are going to convert acyl nitrogen to isocyanate now. That is called the rearrangement. Okay, and that isocyanates Yes, are involved in various reactions now. Various reactions. Okay. Okay. So we'll discuss the main reactions or main reactions from rearrangement family. So पहले अपन rearrangement पढ़ते हैं इसका. So how these nitrines are very useful compound, very useful intermediate in the rearrangement reactions. फिर ऐसे कौन कौन सी reactions है जहाँ पे नाइट्रिन को हम यूज करते हैं? तो सबसे पहले आपकी रिएक्शन जो आती है वो है दैट इज कॉल्ड हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन और हॉफमैन ब्रोमामाइड rearrangement. So the first reaction that is Hoffman
rearrangement. Now look at this reaction now. In Hofmann rearrangement reaction particularly, the primary amide is going to convert to primary amine now with loss of 1 carbon. और यहाँ पे कार्बन जो लॉस हो रहा है, एक कार्बन कम होता है, वो होता है CO2 के फॉर्म में बाहर चला जाता है. The reaction conditions are we are using the base, we are using the NaOH, KOH and in the presence of what? Hydrogen X2. हम क्या यूज करते हैं? जैसे NaOH, KOH यूज करते हैं, नियर अबाउट 60 to 70 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे उसका टेम्परेचर होता है. तो इस रिएक्शन में क्या समझ में आ रहा है हमारे कि कहीं ना कहीं रीअरेंजमेंट हुआ है, अमाइड का ट्रांसफॉर्मेशन अमाइन में हो गया है. अब अमाइड मतलब क्या होता है? व्हाट इज दैट अमाइड नाउ? दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज ए हॉफमन ब्रोमामाइड रीअरेंजमेंट. अब ब्रोमामाइड का मतलब क्या होता है कि ब्रोमा अमाइड मतलब कहीं तो भी ब्रोमीन भी है और कहीं तो भी NH2 भी आपका लगा हुआ. सो विल डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, कैसे इसमें हमारा नाइट्रोजन जनरेट होता है, ये हमारा मेन इंपॉर्टेंट टास्क है. ओके और कई सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं. यू कैन टेक द बेंजामाइड आल्सो. ऐसा नहीं कि सिंपल एलिफेटिक ही ले सकते. यू कैन टेक एनी बेंजामाइड और एनी एरोमेटिक एसिड आल्सो, एरोमेटिक अमाइड आल्सो, दैट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू, यहाँ पे ले सकते हैं इसको. अभी ऐसे बना देखो इधर, ठीक है, एनिलीन बना दिया हमने. ऐसे क्या बन गया आपका? एनिलीन. सो यू कैन टेक एनी काइंड ऑफ अ अमाइड, ठीक है, एंड दैट अमाइड इज गोइंग टू कन्वर्ट. इसमें रिएजेंट हमारा क्या रहेगा? हम NaOH या KOH ले सकते हैं. NaOH भी ले सकते हैं आप, KOH भी ले सकते हैं, और इसके कॉम्बिनेशन में हमको जनरली Br2 लेना होता है, बिकॉज दिस इज अ ब्रोमामाइड रिअरेंजमेंट, इसलिए हम जनरली इसमें ब्रोमीन यूज करते हैं. तो बेस का काम जो है वो प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करना है. स्ट्रॉन्गर बेस हमने यूज किया है यहाँ पे. सो विल डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन. ओके, यहाँ तक ठीक है? Yes. What is the mechanism of behind this reaction? Now, first of all, you will take the simple amide. So write down the okay. So first of all, suppose this is my primary amide RCONH2 now. ठीक है, मैं इसको समझने के लिए यहाँ पे एक H निकालता हूँ और यहाँ पे एक H निकालता हूँ. So when I treated with the stronger base now, what happen now? अगर बेस स्ट्रॉन्ग है मेरे पास, जैसे स्ट्रॉन्ग NaOH या स्ट्रॉन्ग KOH अगर लिया है, फिर ये है लॉसेन रिअरेंजमेंट, जहाँ पे हमने कन्वर्ट किया है हाइड्रोक्सामेट ईस्टर को, जो ईस्टर हम बनाएंगे पहले और उसका फिर हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं. ओके, सो दैट हाइड्रोक्सामेट ईस्टर बेसिकली आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम असाइल हैलाइड, reacts with the hydroxylamine and then further reacts with the carboxylic acid. तो आपको एक ईस्टर मिल रहा है और ईस्टर का आप रिअरेंजमेंट कर रहे हैं. सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? द लॉसेन. ओके, and I will give the one more example for that. बेंजोइल क्लोराइड है, बेंजोइल क्लोराइड या बेंजोइल हैलाइड, और बेंजोइल हैलाइड से मुझे बनाना है प्राइमरी अमीन. तो क्या ये पॉसिबल है? एप्लीकेशन ऑफ बेस. नाउ वी आर गोइंग टू अब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन. So suppose this is my amide. I'm going to react with the powerful base. So that base will going to take the proton और वो सीधा सीधा रेजोनेंस में चला जाएगा, क्योंकि क्या है उधर ये जो नेगेटिव चार्ज आपका बन रहा है वो हो सकता है आपका रेजोनेंस में जाएगा, क्योंकि CO है. CO इज अ गुड विड्रॉवर. ठीक है, सो और उस now that becomes a RCO negative. This is double bond N and this is H. This compound is going to be react with the Br2, that is bromine. So next step is what? When the charge is restored now, जब charge आपका restored होगा, so via this N it is going to react with the bromine और ये Br आपका negative बोलकर बाहर हो जाएगा. So क्या हो रहा है यहाँ पे? So that will generate the, this is R C double bond O N और क्या हो गया आपका यहाँ पे? This is my H और this is my Br. बराबर है. अभी हमने ब्रोमीन लगा दिया वहां पे. नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी? अभी जो हाइड्रोजन है वो और ज्यादा एसिडिक हो गया, थोड़ा ज्यादा एसिड हो गया पहले कंपेयर में, क्योंकि यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन था वो सिर्फ नाइट्रोजन को अटैच था. अब यहाँ पे ब्रोमीन भी आ गया. सो ब्रोमीन क्या करता है? ब्रोमीन जो है वो ये Br भी है और CO भी है, ये दोनों क्या करते हैं? दोनों जो है वो माइनस इफेक्ट दिखाएंगे, और जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका
जो एसिडिक कैरेक्टर जो है उसका और बढ़ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे, सो वी विल गोइंग टू रिएक्ट विद अगेन बेस। ये रिएक्शन कौन से मीडियम में चल रही है, बेसिक मीडियम में, इसलिए हमारे पास बेस तो अवेलेबल रहेगा। सो बेस इज गोइंग टू टेक द हाइड्रोजन अगेन, मतलब पहला हाइड्रोजन निकल गया, Br लग गया। अब दूसरा हाइड्रोजन जब निकलेगा तो ये मेरा रहेगा नेगेटिव चार्ज और ये रहेगा मेरा Br। अब ये कंपाउंड को हम बोलते हैं ब्रोमामाइड। अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एक लोन पेयर अभी है, वहां पर नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है, यहाँ पर एक लोन पेयर है, यहाँ पर एक लोन पेयर है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी रहेगा। ठीक है, इसको बोला जाता है ब्रोमामाइड। क्या बोलेंगे इस कंपाउंड को अपन, ब्रोमामाइड। नाउ यू नो दैट सेल्फ एलिमिनेशन ऑफ Br, अगर Br खुद से निकल जाता है अंडरगो द सेल्फ एलिमिनेशन, सो इन द एज ए Br नेगेटिव, तो दैट स्पीसीज विल जनरेट द असाइल नाइट्रीन। तो आपको क्या मिल रहा है फिर यहाँ पे, दिस इज RC डबल बॉन्ड ON। अभी N पे एक नेगेटिव चार्ज है और एक लोन पे, और उसका ही मतलब क्या होता है, इट इज नथिंग बट द RC डबल बॉन्ड ON विथ 2 लोन पेयर्स। एक लोन पेयर इधर है, दूसरा लोन पेयर इधर है। तो हम इस कंपाउंड को जो है वो बोलेंगे असाइल नाइट्रेट। जो हम नाइट्रीन जनरेट करते हैं। अब नाइट्रीन जनरेट होने के बाद इसका होगा रीअरेंजमेंट। नाउ द नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी आपकी, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज RCON with 2 lone pair. It undergo the rearrangement, and that rearrangement will convert that nitrogen to isocyanate. अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसा लिखो, डबल बॉन्ड, दिस इज ऑल्सो डबल बॉन्ड, देन नाइट्रोजन, देन दिस इज R। बट ये स्ट्रक्चर को हम ऐसा नहीं लिख सकते बिकॉज जो कार्बन है ये वाला, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। ओके, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड R। और इस कंपाउंड को मैं क्या बोल रहा हूँ, Isocyanate. Isocyanate. जैसे उधर हमको कल कीटीन मिला था, वैसे इधर क्या मिल रहा है, आइसोसाइनेट। अब आइसोसाइनेट पे अलग अलग रिएक्शंस आप करवा सकते हैं। सो दैट आइसोसाइनेट, दैट इज RN double bond C double bond O, which undergo the reaction with water. When isocyanate is reacts with water, अलग अलग देखा था कीटीन के साथ भी अलग अलग हमको प्रोडक्ट्स मिले थे। ठीक है, तो अगर हम इसके साथ अल्कोहल की रिएक्शन करेंगे या इसके साथ अगर हम प्राइमरी अमीन की रिएक्शन करेंगे तो आपको अलग अलग जो है वो प्रोडक्ट्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए उधर हम नहीं जाएंगे, पहले हम क्या कर रहे हैं, इसके साथ सिंपल वाटर की ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो वाटर क्या होता है, इट इज गोइंग टू अटैक ऑन टू द कार्बन, इट इज गोइंग टू अटैक ऑन टू द कार्बन, बॉन्ड इज ओपन टू फर्स्ट ऑक्सीजन। तो बॉन्ड ओपन हो गया ऑक्सीजन पे, फिर वो बीच में से आपका क्या हो जाएगा, सो इट विल फॉर्म RN डबल बॉन्ड C ऐड किया है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इंटरनली प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा, सो इट बिकम्स कन्वर्ट्स इनटू RN डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH, और यहाँ पे भी आ गया OH। अब ये कंपाउंड किस में जाएगा, ये कंपाउंड जाएगा टाटोमेरिज्म में। सो टाटोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, सो फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ से यहाँ। so that C, one of the OH from carbon is going to be rearranged. Okay, and here this is R, फिर N है, फिर कौन है इधर लगा हुआ, CO है, फिर OH है, और यहाँ पे है आपका NH। अब इस कंपाउंड को मैं बोलता हूँ कार्बामिक एसिड, एंड दैट कार्बामिक एसिड इज ऑन ट्रीटमेंट विद द बेस, क्योंकि ये रिएक्शन हमारी कौन से मीडियम में है, बेसिक मीडियम रिएक्शन है। और जब बेसिक मीडियम रिएक्शन आपकी होती है तो आप सीधा सीधा इसमें से जो एसिडिक प्रोटॉन है यहाँ पे उसको निकाल लेते हैं। लुक एट दिस, सो इफ आई एम टेक द प्रोटॉन, सो दिस विल गोइंग टू शिफ्ट हियर एंड दिस विल गोइंग टू शिफ्ट हियर। सो फाइनली जो है आपको RNH2 और CO2 बाहर निकलना, so that will converts to that RNH2 as your main product and carbon dioxide is eliminated. रिएक्शन में कितने कार्बन थे और अभी कितने कार्बन हो गए, सो ये हमको बताना है इसके अंदर। ठीक है, तो 2 स्टेप में मैकेनिज्म आपका जा रहा है। तो ये 1-1 एलिमिनेशन का एग्जांपल है ये वाला, कि H और Br दोनों मॉलिक्यूल से चले गए तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, वी कैन कॉल एज ए अल्फा एलिमिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वी हैव टू फर्स्ट प्रिपेयर द नाइट्रीन, असाइल का रीअरेंजमेंट होगा, that rearrangement give the isocyanate and undergo the hydrolysis of that particular compound. Yes, sir.
समझ में आ रहा है क्या? व्हाट इज हॉफमैन ब्रोमामाइड रीअरेंजमेंट? इट इज particularly on Yes, what sir. primary amide. Okay, so you can solve simple example. So if we consider that this is benzamide now, अभी तक हमने सिंपल एग्जांपल लिया, अभी हम लेंगे बेंजामाइड. ठीक है, बेंजामाइड के ऊपर भी वही सेम रिएजेंट हम यूज करेंगे. दैट इज व्हाट X2 and NaOH. आपको पता होगा हमने हेलोफॉर्म रिएक्शन पढ़ी थी इसके पहले, किसी को याद है क्या? दिस इज द प्रोडक्ट. ओके, Yes, sir. और Aniline. हेलोफॉर्म रिएक्शन में हमने मिथाइल कीटोन लिया था. और हेलोफॉर्म रिएक्शन की स्पेशलिटी क्या है? हेलोफॉर्म रिएक्शन में भी हम वही रिएजेंट यूज करते हैं जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं. ठीक है, और हेलोफॉर्म रिएक्शन इज डिफरेंट. हेलोफॉर्म रिएक्शन गिव्स द डिस्प्रोपोर्शनेटिंग प्रोडक्ट, और CH का कन्वर्शन हो गया CHX3 में, यहाँ पे हो गया CO2. लुक एट दिस टू रिएक्शन इन विच सेम रिएजेंट आर गिवन नाउ. तो पहली जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन इसको बोलते हैं हम, कौन सी रिएक्शन है ये? Hoffman. हॉफमैन ब्रोमामाइड रीअरेंजमेंट. और जो दूसरी जो रिएक्शन है ये क्या है? Halogen. हेलोफॉर्म रिएक्शन. ये लैब में मिथाइल कीटोन को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज की जाती है. किसको? जिस कंपाउंड में मिथाइल कीटोन रहेगा या सेकेंडरी अल्कोहल रहेगा, उसके लिए ये टेस्ट लैब में की जाती है. रिमेंबर? ओके, तो चलिए, तो हम ऐसे, दैट इज कॉल्ड हॉफमैन ब्रोमामाइड एंड हेलोफॉर्म. दोनों की क्या सेम है लेकिन? Reagents. In which the nitrogen is involved now, and that reaction is called as a Hofmann bromamide. Okay, we're going to discuss the second important rearrangement reaction, and that is called as a Curtius. इसको बोला जाता है Curtius rearrangement reaction. जो लोग MSc में हैं अभी, उनको सेमेस्टर 2 में है ये फर्स्ट चैप्टर में. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट दिया गया है, और उस मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट में ये चैप्टर है स्पेशल, एंड दैट इज व्हाट मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट. ओके. Okay, so what is that Curtius rearrangement now? What is the statement and how one can convert to your particular desired product? इसमें क्या यूज करते हैं अपन? इसमें यूज करते हैं RCON3. So that RCON3 का मतलब होता है असाइल अजाइड. So here असाइल अजाइड. अब देखो, इसको जब हम याद रखते हैं ना हॉफमैन को, तो कैसे याद रखेंगे? सो हॉफमैन ब्रोमामाइड इज अ बेसिक मीडियम रीअरेंजमेंट. कौन से टाइप की रीअरेंजमेंट है ये? इट इज अ बेसिक मीडियम रीअरेंजमेंट. तो बेसिक है, और इसमें हम अमाइड से लेके क्या कन्वर्ट कर रहे हैं? प्राइमरी अमीन में उसको डाल रहे हैं. उसी तरह से कर्टियस को जब हम याद रखते हैं, तो कर्टियस जो है ना, ये न्यूट्रल मीडियम रिएक्शन है. ना ही इसमें कोई बेस यूज किया जाता है, ना ही इसमें कोई एसिड यूज किया जाता है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं न्यूट्रल मीडियम रिएक्शन. ओके, ना इसमें कोई भी टाइप का जो है हमने रिएजेंट यूज नहीं किया. सो दिस रिएक्शन इज बेस्ड ऑन टेम्परेचर, दैट इज इट इज अ थर्मल कंडीशन रिएक्शन. ओके, और इसमें एरोमेटिक सॉल्वेंट जैसे टोलुइन या बेंजीन जो है वो एज ए सॉल्वेंट यूज की जाते हैं. सो नियर अबाउट टेम्परेचर 60-70 के आसपास होता है. ओके, और असाइल अजाइड से हम डायरेक्टली प्राइमरी अमीन बनाते हैं. सो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग. और बट वाया द इंटरमीडिएट एज ए आइसोसाइनेट, फिर से वही हमारा बन रहा है. अब हमको देखना है कि जो असाइल अजाइड होता है क्या. अजाइड मतलब, अजाइड मीन्स यंत्री. ओके, और असाइल ग्रुप किसको बोलते हैं? दैट RCON3. दिस इज कॉल्ड एज ए. हमने सबसे पहले जनरेशन में पढ़ा था कि असाइल अजाइड भी जो है ये भी एक नाइट्रीन. ओके, तो अब मैं पहले तो असाइल अजाइड को लिखने की कोशिश करूंगा आपके सामने कि कैसे लिख सकता हूं मैं इसको. RCO, ये मेरा सबसे पहला N रहा, फिर मैं इसके साथ में डबल बॉन्ड लगा दूंगा, फिर और एक डबल बॉन्ड लगा दूंगा, ये हो गया नाइट्रोजन. अब मुझे चार्जेस देने हैं. चार्जेस कैसे रहेंगे आपके? बीच वाला चार्ज जो रहेगा वो रहेगा आपका पॉजिटिव, और लास्ट वाला रहेगा मेरा नेगेटिव. ठीक है, अभी इसके पास एक और लोन पेयर बचा हुआ है, तो अब मैं क्या करूंगा? इस लोन पेयर को रीअरेंज करूंगा. सो द लोन पेयर विल बी शिफ्टेड लाइक दिस फैशन. तो फाइनली मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे? जब मैं ऐसे करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? N2 विल बी गेट एलिमिनेटेड नाउ, और N2 एलिमिनेट करने के लिए मुझे थर्मल कंडीशन की जरूरत है. सो Rn, फिर ये बना मेरा N2. अभी चार्जेस कैसे रहेंगे? द चार्जेस शुड बी लाइक दिस. यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और ये रहा लोन. तो द सेल्फ एलिमिनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर N2 फ्रॉम दैट मॉलिक्यूल. तो यहाँ से मैं अगर इसको N2 निकालता हूँ तो ये हो जाएगा आपका हेटेरोलिसिस लाइक दिस.
और जिसकी वजह से मुझे जो कंपाउंड मिल रहा है वो है मेरा असाइल नाइट्रेट। सो दिस इज RCON विथ नेगेटिव चार्ज एंड, या उसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते। फिर अब ये जो नाइट्रिन बना है, ये नाइट्रिन के बाद से सबका मैकेनिज्म सेम है, सिर्फ नाइट्रिन बनने तक की आप थोड़ा सा मैकेनिज्म अलग रहेगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, इट विल अंडरगो द रीअरेंजमेंट, सो दिस विल गोइंग टू शिफ्ट हियर, this will going to be shift here, that is the formation of what the isocyanate। क्या मिलेगा फिर यहाँ पे, this is RN double bond C double bond O, so that isocyanate is undergo the hydrolysis। क्या हो जाएगा isocyanate का, ये हो गया हाइड्रोलिसिस। तो जैसे मैं इसको हाइड्रोलिसिस करता हूँ तो क्या बनना चाहिए मेरे पास, इट प्रोड्यूसेस द कार्बामिक एसिड। तो कार्बामिक एसिड का मतलब क्या होता है, R, उसके बाद NH डबल बॉन्ड O एंड OH। अब सीधा सीधा इसमें से मुझे हीट करना है इसको, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलिमिनेशन ऑफ CO2। तो CO2 निकल जा रहा है बाहर, तो बच क्या गया मेरे पास, गॉट इट। Yes, sir. द लास्ट ऑफ वन कार्बन, उसमें भी वैसे ही हुआ था। मतलब आपके पास यहाँ से मैकेनिज्म सेम रहेगा, नाइट्रीन से आइसोसाइनेट और आइसोसाइनेट से कार्बामिक एसिड, कार्बामिक एसिड से फिर प्राइमरी अमीन, दैट्स वेरी सिंपल। ठीक है, Yes, sir. okay, that's fine। So this is what the important reaction from you can generate that primary amine from acyl azide। अब acyl azide आप कोई भी ले सकते हैं। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, No, sir. okay, fine। You can solve this example if I give the this type of what azide and you can form the product। So the next rearrangement reaction from your nitrine waste particularly, and that is called as what, Lawson rearrangement। ठीक है, नेक्स्ट कौन है फिर ये, Loss and rearrangement. Lawson। Okay, and how this Lawson rearrangement will be work and how it produces the primary amine again। So इसमें जो है ना वो हम यूज करते हैं हाइड्रोक्सामेट एस्टर, सो दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्सामेट एस्टर। ये थोड़ा सा अलग कंपाउंड है लेकिन मैकेनिज्म बहुत आसान है इसका, एंड दैट कंपाउंड इज अंडरगो द ट्रीटमेंट विद द पर्टिकुलरली द थर्मल कंडीशन, दैट विल, पहले आपको क्या मिलेगा, आइसोसाइनेट, और फिर आइसोसाइनेट का वही क्या मिलेगा आपको, बट द क्वेश्चन इज व्हाट इज दैट हाइड्रोक्सामेट एस्टर। हाइड्रोक्सामेट एस्टर को बनाते कैसे, पहले अपन वो देखेंगे। ठीक है, ओके। सो द रिएक्शन इज वेरी सिंपल नाउ। सो लुक एट दिस वन, सपोज मेरे पास अगर असाइल क्लोराइड है, RCOX है, और मैं इसकी रिएक्शन जो है, क्या है मेरे पास पहले, RCOX। RCOX पे अगर मैं हाइड्रोक्सिल अमीन की रिएक्शन करता हूँ, किसकी रिएक्शन कर रहा हूँ मैं, NH2OH, क्या हो जाएगा, तो दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, एक तो डायरेक्टली आपका कंडेंसेशन भी होता है, या तो फिर आप एक्स जो है गुड लिविंग ग्रुप है ना यहाँ पे, और एक्स जो है अगर गुड लिविंग ग्रुप अगर है तो यहाँ पे हम इसको अटैक कर सकते हैं, बॉन्ड आपका ओपन हो सकता है, फिर बॉन्ड रिस्टोर हो सकता है आपका, और एक्स जा सकता है, और जो एक्स जाएगा वो एच को भी लेके जाएगा, और इस वजह से जो हमको कंपाउंड मिलेगा, सो इट इज RC डबल बॉन्ड O NH और OH। में क्या हो रहा है यहाँ पे,
हेलो, Yes, sir. आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है यहाँ पे? तो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने यूज लिया है एसिड हलाइड। पहले क्या किया मैंने, एसिड हलाइड, और उसके साथ किसकी रिएक्शन की है मैंने, हाइड्रोक्सिल अमीन की। हाइड्रोक्सिल अमीन मतलब क्या होता है, NH2OH। तो जैसे मैंने वो लिया है तो सिंपल आपका HCl बाहर निकल गया या HX बाहर निकल गया, और HX बाहर निकलने की वजह से मुझे ये कंपाउंड मिला। फिर मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हमको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है और ये OH जो है, ये OH और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से आपको OH लेना है और यहाँ से आपको H लेना है। सो अगेन लॉस ऑफ वाटर। तो जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा ना उसको बोलते हैं हाइड्रोक्सामेट एस्टर, यानी कि थोड़ा सा बड़ा है ये। देखो RCO क्या है यहाँ पे, ये है NH, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद क्या रहेगा आपका C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज R डैश। कुछ समझ में आया क्या हुआ है? तो कौन कौन सा पार्ट कहाँ कहाँ से लिया है? देखो Yes, ये sir. जो RCO है ये कहाँ से आया, ये आया तुम्हारे एसिड हलाइड से, ठीक है। Acid halide जो से. जो NNHO ये जो है ये आया आपके हाइड्रोक्सिल अमीन से, और जो COR जो है ये आया आपके कार्बोक्सिलिक एसिड से, ठीक है। यानी कि इतना जो पार्ट है आपका ये कहाँ से आ रहा है, एसिड हलाइड। ये जो पार्ट है ये कहाँ से आया आपका, हाइड्रोक्सिल अमीन, और ये जो पार्ट है आपका ये कहाँ से आया, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। Yes, sir. अब ये जो कंपाउंड बना है ना इसको सामेट ईस्टर, so that compound is called as a hydroxamate ester. Arrangement. So write down the ester now. क्या क्या था ईस्टर में हमारे, RCO NH ऑक्सीजन CO एंड दिस इज R डैश लिखता हूं मैं इसको, ठीक है। नाउ इट अंडरगो द रीअरेंजमेंट लाइक दिस फैशन। कैसे होगा रीअरेंजमेंट इसका, दैट हाइड्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस रिएक्शंस। जो नाइट्रोजन भी जनरेट करेगा और बाकी की चीजें भी आपकी हो जाएगी। सो इट इज गोइंग टू रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, ओके। क्या हो रहा है आपका, या आप इसको ऐसे बता सकते हैं so that lone pair on that oxygen will going to take that hydrogen, so this will going to make a nitrene। यहाँ पे एक लोन पेयर है हमारे पास, और ये वाला जो बॉन्ड है वो आपका ऐसे ऐसे शिफ्ट हो रहा है, यानी कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो है एसिड, वापस हमको मिल रहा है। सो हाउ आई गेट द एसिड नाउ, ये एरो को थोड़ा सा ऐसे लिखो, ऐसे। अब समझ में आएगा आपको क्या हो रहा है यहाँ पे। लुक एट दिस वन, दिस इज माई R, दिस इज माई C डबल बॉन्ड O, और N है। यहाँ पे एक लोन पेयर पहले से था और अभी जो आया वो नेगेटिव चार्ज आया। क्या हो गया, दिस इज गोइंग टू बी डबल बॉन्ड, दिस इज गोइंग टू बी a सिंगल बॉन्ड विथ हाइड्रोजन, एंड दिस इज गोइंग टू बी R। गॉट इट। Yes, sir. तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो बाहर हो रहा है आपका, एंड दैट विल प्रोड्यूस द व्हाट, नाइट्रीन। क्या मिल गया तुमको, नाइट्रीन। अब ऐसा भी कर सकते हैं, कैसा कर सकते हैं, दिस कंपाउंड इज अंडरगो द व्हाट, एलिमिनेशन। पहले क्या करो, इट इज एन बेसिक मीडियम रिएक्शन आल्सो, ओके। तो पहले हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रोटॉन निकाल सकते हैं ऐसे वाला, यहाँ से ये प्रोटॉन निकल गया, एक लोन पेयर तो ऐसे रहेगा बाय द एप्लीकेशन ऑफ बेस नाउ, ठीक है, निकल गया। बट जनरली ये भी न्यूट्रल मीडियम रिएक्शन है इसलिए बेस का कोई काम नहीं है। अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं। यहाँ पे जो ऊपर वाला मैकेनिज्म है वही इसका कॉमन मैकेनिज्म, ओके। सो सेल्फ एलिमिनेशन ऑफ दैट ग्रुप नाउ, यानी कि आपका जो ग्रुप है वो कैसे निकल रहा है बाहर, RC2। ये तो स्टेबल ग्रुप है, बाहर जाके स्टेबल हो जाएगा। और नाइट्रोजन जो मिल रहा है Not audible, sir. द फाइनल प्रोडक्ट। चलिए, तो लॉसेंट रिअरेंजमेंट में हमने क्या बनाया था, RCO NHO CO R dash, right? And it will be converts to the RCO and
तो अब OH हो जाएगा यहाँ पे। फिर इसके बाद हम उस पर एसिटिक एसिड की रिएक्शन कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3CO फिर ये हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, ये उसी का ही था, और CO। ठीक है, अब ये होने के बाद हम इसको हीट कर रहे हैं, तो हीट करने का मतलब क्या होता है, वी आर गोइंग टू जनरेट द नाइट्रीन। हो गया। और नाइट्रीन का कन्वर्शन जब है हम, तो सबसे पहले हम कार्बामिक एसिड में करेंगे, यानी कि उस पर वाटर लिखेंगे, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे भी इसको लिख सकते हैं। सो बाय एडिंग वाटर फर्स्ट एंड बाय हीट, यहाँ पे आपको हीट करना पड़ेगा। हो गया। Yes, sir. Okay. The one more rearrangement from that nitrine, and that rearrangement is called as a Schmidt. Okay. Schmidt rearrangement. Schmidt कैसे होती है, इसमें भी नाइट्रीन बनता है। तो लेना है, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड लेना है, क्या लेना है तुमको, वी हैव टू यूज द कार्बोनिल कंपाउंड, आइदर अल्डिहाइड और आइदर कीटोन, जनरली कीटोन। ओके, व्हेन कार्बोनिल कंपाउंड्स आर गोइंग टू रिएक्ट विद हाइड्राजोइक एसिड, हाइड्राजोइक एसिड का मतलब होता है HN3, हाइड्राजोइक एसिड, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट अगेन, द एसिडिक मीडियम, इंपॉर्टेंट चीज है एसिडिक मीडियम। तो आपको आइसोसाइनेट बन रहा है, और आइसोसाइनेट बन के आप डायरेक्टली उसको कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, अमाइड। सो दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी अमीन इज द प्रोडक्ट। तो अब हो सकता है अगर आपने सपोज एग्जांपल जो है अल्डिहाइड अगर ले लिया, तो अलग अलग प्रोडक्ट भी आपको बन सकते हैं इसके अंदर। सो देयर आर द वेरियस डिफरेंट मैकेनिज्म आर देयर, पर्टिकुलरली फॉर द श्मिट रिएक्शन। तो श्मिट में हम प्राइमरी अमाइन भी बनाते हैं और आपको अमाइड भी बनता है, बट इट इज ऑल्सो द रीअरेंजमेंट रिएक्शन प्रोसीड वाया द नाइट्रीन। सो कार्बोनिल कंपाउंड हमारे पास प्रेजेंट है, आइदर आप अल्डिहाइड ले सकते हैं, आइदर आप कीटोन ले सकते हैं। व्हाट इज हाइड्रोक्सिक एसिड नाउ, HN3 को हाइड्रोक्सिक एसिड बोलते हैं। प्राइमरी अमीन मतलब आपका हो गया NH2, और अगर आप अमाइड बना रहे हैं तो आपका हो जाएगा SN। ठीक है, ऐसा इसका जनरल मैकेनिज्म है। ठीक है, ओके। नाउ विल सी द मैकेनिज्म, बिना मैकेनिज्म के तो हम बता ही नहीं सकते कि कैसे जा रहा है। तो अभी पहले क्या करना है आपको, अलग अलग कार्बोनिल कंपाउंड्स लेने हैं, अल्डिहाइड लेके देखना है, फिर उसके बाद आप कीटोन लेके देखोगे। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट मैकेनिज्म इसका देखते हैं। सो व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। ओके, व्हाट वी हैव टू यूज नाउ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम कोई कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं और उसके साथ अगर हम एसिड यूज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा। सपोज आई हैव द सिंपल एग्जांपल इज RCOR डैश। ठीक है, ये मैंने लिया, और ये लेने के टू रिएक्ट में है आपकी रिएक्शन, ये इट इज एन एसिडिक मीडियम रिएक्शन, सो दैट्स व्हाई फर्स्ट ऑफ ऑल इज द प्रोटॉन। क्या होता है प्रोटॉन का, प्रोटॉन जो है वो कहाँ पे चला जाएगा, सो दैट लोन पेयर फ्रॉम दैट विल गोइंग टू फर्स्ट टेक द हाइड्रोजन। ओके, और यहाँ पे लग गया मेरा H, इस पे आ गया मेरा चार्ज पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, नाउ आई एम गोइंग टू रिएक्ट विद HN3। और HN3 जो है वो कैसे रिएक्ट होता है, HN3 का अगर आप स्ट्रक्चर निकालोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे HN, ये ऐसा है, ये HN3 चार्जेस नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब जो नाइट्रोजन नेगेटिव है वहां से वो अटैक करता है जनरली। ठीक है, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ एसिड। तो पहले जिसने H प्लस दे दिया वो उसी से आया हुआ है। अभी जो स्पीसीज जो बच गई वो क्या है आपके पास, जो स्पीसीज बच गई उसका क्या नाम रहेगा,
या क्या रहेगा स्पीसीज में रिमेनिंग? N3 नेगेटिव। क्या रहेगा रिमेनिंग पार्ट आपका? N3 नेगेटिव. Okay, and that negative charge is going to attack onto the carbonyl group. So let's see, this is R, okay, and this bond will be open to oxygen. तो यहाँ पे क्या हो गया? This is OH, this is R dash, and this is what? N3. ऐसे बना आपका. फिर मैं क्या कर रहा हूँ? This compound is undergo the treatment with H plus ion. The lone pair from that OH will going to take the proton and converts to a good living group. So that is R. This is what? OH2 plus. This is R dash. ये हो जाएगा आपका N3. ठीक है. अब ये नेक्स्ट प्रोसेस में कैसे जाएगा या कैसे प्रोसीड होगा आगे? वाटर को आपको निकालना है. ठीक है. वाटर इज एलिमिनेटेड एंड दैट विल बी कन्वर्ट्स इनटू द. अब यहाँ पे जो N3 है ना, वो N3 का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है आपका? सो हाउ दिस N3s आर रिप्रेजेंटेड? दिस इज R dash, N नेगेटिव, मेरा ऐसे. So in the next step, what? One of the hydrogen from that OH is going to be taken by that negative charge, and it will be going to convert. This is R dash. ये हो जाएगा अभी आपका NH, और यहाँ पे रहेगा मेरा ये N2, और ये सिंपली हो जाएगा आपका OH. ओके, तो ये एक ऐसे टाइप का आपका कंपाउंड आपको मिल रहा है. सो इसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे? यू नो दैट N2 is the best living group. N2 is what? The best living group, and how we can convert to this one. अब यहाँ पे हो रहा है आपका rearrangement. और कैसे होगा rearrangement? How it will be developed now? क्या हो जाएगा यहाँ पे? अब जो ड्राइविंग फोर्स है ना, वो क्या है आपका? लोन पे ये है OH. सपोज अगर मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ, सो दिस R डैश और R जो भी गुड माइग्रेटिंग ग्रुप होगा, सो इट गोइंग टू शिफ्टेड ऑन नाइट्रोजन एंड दिस विल बी फ्री नाउ. तो अभी क्या हो रहा है आपके पास? देखो ये R जैसे कि वैसा रहा मेरे पास R. फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे? C डबल बॉन्ड O हो जाएगा. ओके, यानी कि इसके साथ भी H लगा हुआ है. फिर क्या आ गया इधर? दिस इज व्हाट NH, और ये R. अब रिएक्शन पूरी एसिडिक मीडियम है, तो हम इसको आसानी से नेगेटिव चार्ज वाला कोई भी बेस जो रहेगा आपका, वो हम निकाल लगा के प्रोटॉन को निकाल सकते. तो आपका जो मेन प्रोडक्ट है, क्या मिल रहा है फिर आपको? ये दिस वन. तो ये R डैश आपका इधर जाएगा. आ रहा है क्या समझ में आपके? ये हेलो, Yes, sir. नो S. क्या हो रहा है? कुछ नहीं सर, क्लियर आवाज है. समझ में आ रहा है क्या ये है? सो आया आया. क्या टू डू नाउ? देखो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये खुद एसिड है, इटसेल्फ रिएजेंट. सो कार्बोनिक कंपाउंड पे पहले हम क्या कर रहे हैं? वो प्रोटॉन यूज कर रहे हैं. रिएक्शन हो गई है, तो पहले आपका प्रोटोनेशन हो रहा है किधर? ऑक्सीजन के ऊपर. जो रिमेनिंग स्पीसीज आपकी बच गई वो एज ए न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, दैट इज N3 नेगेटिव. सो N इज गोइंग टू अटैक ऑन द कार्बोनिक ग्रुप. तो आपको ये वाला इंटरमीडिएट मिल रहा है, दैट इज हैविंग 3 एंड OH. फिर हम वापस से एसिडिफिकेशन कर रहे हैं.
फिर एसिडिफिकेशन करने से क्या होता है कि आइदर आपका OH भी प्रोटोनेट होगा या तो फिर आपका, अब देखो ये और ये स्टेप आप यहाँ से कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले OH को प्रोटोनेट किया, फिर OH का प्रोटॉन N को दे दिया, या आप डायरेक्टली ये वाली स्टेप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। फिर क्या होता है यहाँ पे कि देयर इज अ रीअरेंजमेंट, द OH बॉन्ड इज लो, दैट OH इज अ ड्राइविंग फोर्स, और जो भी माइग्रेटिंग ग्रुप रहेगा वो यहाँ पे N रहेगा, N2 आपका एलिमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे आप N2 निकाल रहे हैं बाहर, फाइनली यू विल गेट दिस वन। So Yes, from sir. carbonyl compound to amide, carbon compound to uh, Yes, पड़ेगा, पहले इसको यूज करना पड़ेगा NH2OH के साथ में, फिर दूसरा यूज करना पड़ेगा, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लेना पड़ेगा आपको, एग्जांपल CH3COOH। फिर उसके बाद तीसरा जो रहेगा वो हीट करना पड़ेगा आपको उसको, फिर हीट करके आपका आइसोसाइनेट बनेगा, और चौथे में आपको वाटर यूज करना पड़ेगा, और वहां पे भी आपको क्या करना है, हीट करना, तब जाके आपका वो बनेगा। तो पहला क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा आपका, दिस विल बी गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द cyclic carbonyl group as a reactant now. ओके, अगर ये मैं यूज करता हूँ और इसके साथ HN3 करता हूँ, तो इन प्रेजेंस ऑफ एड एसिड, सो व्हाट विल बी द माय फाइनल प्रोडक्ट नाउ। ओके, सो ये भी एक आप